संत पौलुस तिमोथियुस को पहला तिमोथियुस की पत्री में ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें अफसोस में इसलिए छोड़ा कि जो अन्य प्रकार की जो शिक्षा देते हैं और इधर उधर की बातों को सिखाते हैं, उन झूठी शिक्षा को फैलाते हैं, उनको दूर रोकना। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो क्लिप को अच्छे से सुने, तब हम इस पर बात करेंगे क्या ये सही है या गलत है, वो भी हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। बहुत ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। 100 ਏਕੜ ਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਰਸ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਤਦ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਨੀਅਰ ਬਿਲੇਨੀਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर रखियो। यहाँ पे मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो ये है, जिस प्रकार वो पहले बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज के बारे में, कि परमेश्वर का राज आएगा और उस पूरे जो उन्होंने विज़न देखा है, दर्शन देखा, उसमें कह रहे हैं कि 100 एकड़ ज़मीन के लिए जगह चाहिए। और सबसे पहली बात, जो परमेश्वर का राज्य वो वास्तव में है क्या। जब यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, उन्होंने सबसे पहले जो प्रचार किया था वो ये था कि तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य वास्तव में उस समय कहाँ पे था और अब कहाँ पे है। पहली बात, जब यीशु मसीह धरती पे प्रचार कर रहे थे, उन्होंने स्पेशली यहूदी लोगों को ये प्रचार किया, मगर यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर का जो राज्य था वो उनके लिए पोस्टपोन हो गया। और वो परमेश्वर का राज्य अब कलीसिया में आ चुका है। कलीसिया में कैसे? जब रोमी के पत्र उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन में जब आप पढ़ो, वहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और इस वक्त कलीसिया में जो परमेश्वर का राज्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे बीच में राज कर रहा है। सवाल ये आता है कि अगर परमेश्वर का राज्य आज कलीसिया के अंदर चल रहा है, तो ये लोग किस परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जो वो इस धरती पे एक बड़ी बिल्डिंग कह सकते हैं खड़ी करने के द्वारा वो लेके आना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब आज परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में कलीसियों पर राज नहीं कर रहे? और दूसरी बात, जो प्रकाशित वाक्य की जो बात हो रही है, रेवलेशन की बात हो रही है, और वहाँ पे जो
नए आकाश नई धरती की बात हो रही है, उसको पढ़ने से पहले या फिर उसको समझने से पहले मैं कहूँगा कि सभी लोगों को सबसे पहले प्रकाशित वाक्यों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पुस्तक जो है वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस बुक को लिखने का जो स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर है, उसका जॉनरे जो है वो वास्तव में है क्या। जो बात प्रकाशित वाक्य में हो रही है नए आकाश और नई पृथ्वी की, उस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वास्तव में है क्या और वो बात या फिर वो घटना कब घटेगी। नया आकाश और नई पृथ्वी ज़रूर होगी, मगर उससे पहले कलीसिया का उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। जो प्रकाशित वाक्य जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार से लिखा हुआ है। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, जब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं होगा, तब तक इस धरती पर जो महाकष्ट है जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वो नहीं होगा। फिर उसके बाद यीशु मसीह सभी लोगों के साथ इस धरती पे 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। और यहाँ पे ये बात का दावा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस बात का ब्लूप्रिंट दिया है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो बातें परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में बताई हैं वो सारी बातें इस पृथ्वी पे हों, परमेश्वर ने उन सारी बातों का ब्लूप्रिंट अपने दास यूहन्ना को क्यों नहीं दिया। पर परमेश्वर उन्हें वो सारी बातें बता रहे हैं प्रकाशित वाक्य के द्वारा, तो फिर परमेश्वर ने उस बात का ब्लूप्रिंट भी दे सकते थे। इस बात पर आप लोगों की क्या राय हो सकती है। आगे वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक वो स्ट्रक्चर इस पृथ्वी पर नहीं बन जाता तो हमें आगे भी वो स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, साल्वेशन जो कॉन्सेप्ट है, उनको अच्छे से नहीं समझ में आया, क्योंकि वो यहाँ पे मुक्ति के कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं, साल्वेशन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो ये लोगों से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने इस विज़न को, तो यहाँ पे एक बिजनेस माइंड हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग आज के समय में, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग जब अंत के दिनों में आएंगे और झूठी शिक्षा को फैलाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आज ऐसा हो रहा है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ध्यान से सुने, समझे और उन पर अमल करें। और मुझे लगता है कि आज हमें फिर से प्रभु के वचन की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। हम सबको ज़रूरत है हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं, ताकि हम अपना बचाव कर सकें इन सभी झूठी शिक्षाओं से। तो मैं उन सभी लोग जो जितने भी इस प्रकार से झूठी शिक्षा फैलाते हैं, बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, तो हमेशा मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको बाइबल का प्रचार करना नहीं आता तो कृपया आप सीखें। अगर नहीं सीखना तो आप कृपया बाइबल का प्रचार मत करें। क्यों? क्योंकि ये लोग अलग-अलग तरीके से बाइबल को प्रचार करते हैं, बाइबल के वचनों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कलीसिया में दरार पैदा होती है और कलीसिया में ख़ास करके झूठी शिक्षा फैलती है। और इन ऐसे लोगों के लिए प्रभु के दास संत पौलुस एक वचन लिखते हैं गलातियों की पत्री में। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन को ख़ास करके पढ़ना। ख़ास करके अगर आप पंजाबी में इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। और साथ में आप कमेंट करके अपने विचारों को ज़रूर बताना, क्या सही है या गलत है।